the girls semi-finals, the under-18 semi-finals that is happening. Every player, two of the topmost scoring teams here, and with that whistle, the match is on its way. And with a long cross, straight away, Haryana in the attack. Had she gone for the far post on a grounded corner, probably there was a better chance for Haryana. Desperate run for the ball from the left flank. Haryana trying to keep it in possession. Muskan with the run, but Tamil Nadu takes the shot and they open the account. That's an unbelievable development. Oh, what a time it was for celebration here at the Yamuna Bhagat Stadium in Barauni. Tamil Nadu in the attack. It is Anveta goes with that lovely field goal, and two defenders in form of Sapna and Manju have been stunned. 2-0 is a great lead to have, especially in a match like this. Laya is out of her line, but the defensive crowd clears the ball. It's a goal! Haryana pull one back. They were waiting for this to happen. They were absolutely waiting for this to happen. There was a defensive melee. The defense looked a little sloppy there. They looked like they were a little napping. Excellent work done by Pooja. For the first 15 minutes, 10 minutes, they were on the driving seat. They looked they were a little aggressive. But in the end, it didn't happen. There is a chance. There is a chance. There is a foul inside the box. Is that a foul? Is that a regulation foul? The whistle does not come. The game continues. The Haryana bench is very vociferous. Oh, this is an open goal. This is an open goal. An open goal. Haryana have scored. They have drawn level. We were talking about that moment of brilliance. Look at Pooja. She is jumping like a kid. Full time here. That is the full time whistle. 2-2 here at the Yamuna Bhagat Stadium in Begusarai. And we are off to penalties. We are in the shootout. It is Asika for Tamil Nadu and she scores. It is 1-0 for Tamil Nadu. Takes the charge. Oh, saved. Saved by Laya. Brilliant work. Anvita Raguraman taking the second kick and she scores. Tamil Nadu. 2 greens for them. Number 5 from Haryana. It is Sapna who had the last opportunity of that corner. Can she score? And she does that. She does that and keeps Haryana alive in this penalty shootout. Kavya getting ready. The whistle goes. Kavya scores. This kick will send Tamil Nadu into the final. It does. Tamil Nadu have gone into the final. They have bet Haryana in the penalty shootout. Tamil Nadu. So news from the centre is the winner of first semi-final in the morning session here in Begusarai. मणिपुर की अंबिका देवी है और उनके सामने कर्नाटक की एस तन्वी है, जिनके बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला। शुरुआत बहुत अच्छी की है। चौथा अंक भी उन्होंने यहाँ पर अर्जित कर लिया है। 4-0 की बढ़त पलक झपकते ही जिस तरह से उन्होंने अर्जित की, वापसी करनी होगी। एक और अंक यहाँ पर। और अगर उपलब्धियों की बात करें तो अंडर 17 इंटर स्कूल इंडिविजुअल में गोल्ड और टीम में भी गोल्ड। प्राउड डॉटर हैं प्रेमचंद देवी की, मणिपुर की बी अंबिका देवी। हिट किया था यहां पर तन्वी, एंटिसिपेट कर लिया था। हालांकि 1 अंक मिला यहां अंबिका को, लेकिन अब सिर्फ 1 अंक और चाहिए इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए, और ये है विजयी हुंकार। 15 अंक तन्वी ने हासिल किए और फाइनल का टिकट भी हासिल किया। 11 के मुकाबले 15 अंक से पी अंबिका देवी को हरा दिया है एस तन्वी ने। और अब अनुकृति सिंह और प्रकृति शर्मा के बीच में यह मुकाबला है। अनुकृति सिंह के लिए वार्निंग दी गई है।
अनुशासन के अंतर्गत रहकर ही आपको इस खेल को खेलना है। एक अंक अर्जित किया, थोड़ा सा आक्रामक नजर आ रही हैं। एक अंक यहाँ पर आता हुआ। प्रकृति शर्मा और अनुकृति सिंह के बीच में मुकाबला चलते हुए, जहां अनुकृति सिंह ने, हरियाणा की अनुकृति सिंह यहां अपनी डोमिनेंस लगातार बरकरार रखते हुए राजस्थान की प्रकृति शर्मा को बैकफुट पर धकेल रखा है यहाँ। और यहाँ एक एक अंक का इजाफा दोनों ही खिलाड़ियों के लिए आना चाहिए। मात्र 2 अंक और चाहिए फाइनल के टिकट के लिए यहाँ प्रकृति शर्मा को। और ये प्यारी रिपोस्टे और 1 अंक और प्रकृति के लिए 14 पर। ऐसा लगता है 1 अंक यहाँ मिलेगा अनुकृति सिंह को। गर्ल्स सैबर इंडिविजुअल सेमीफाइनल में प्रकृति शर्मा अनुकृति को हराकर यहां पहुंच गई हैं फाइनल में। करण चौधरी उत्तर प्रदेश और रोहन शाह महाराष्ट्र। फिलहाल 1 अंक यहां पर रोहन शाह के लिए आता हुआ और एंड एरिया में 1 अंक और रोहन शाह के लिए बैक टू बैक। मुकाबला फिर शुरू होते हुए स्कोर बोर्ड पर फिलहाल कोई हलचल नहीं। इस बार काउंटर, बहुत क्लोज आ गए थे दोनों। ऑन गार्ड, ये जो लास्ट येलो लाइन है इससे पीछे आप अपना पैर नहीं लेके जा सकते हो। और यहाँ पर 1 अंक करण चौधरी के लिए आता हुआ। बॉयज फॉइल इंडिविजुअल सेमीफाइनल, ये मुकाबला पहला सेमीफाइनल। और यहाँ 1 अंक मिलेगा करण चौधरी को। थोड़ा सा पीछे जाने पर मजबूर किया यहाँ करण चौधरी को। 10 पर पहुंचे हुए हैं रोहन शाह। और अब इस पहले राउंड की समाप्ति में क्या कोई अंक बनेगा? यहाँ पर अंक बनने की पूरी संभावना। उत्तर प्रदेश के करण चौधरी लगातार इस उम्मीद के साथ संघर्ष करते हुए कि वापसी का मौका मिलेगा, लेकिन रोहन शाह अब इस दूसरे राउंड में 13 पर है। मात्र 2 अंक और चाहिए उन्हें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए। यहां बहुत ही क्लेवर 1 अंक का इजाफा और ये इसी के साथ फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। रोहन शाह ने करण चौधरी को हरा दिया है 15-8 से। एस तन्वी के साथ अपना फाइनल मुकाबला खेलते हुए गोल्ड मेडल ये मैच है राजस्थान की प्रकृति शर्मा और कर्नाटक की एस तन्वी। यहाँ खाता खुलते हुए तन्वी का 1 अंक तन्वी को मिल चुका है और इसी के साथ प्रकृति शर्मा का भी खाता खुलते हुए 1-1 अंक दोनों खिलाड़ियों का। यहाँ पर 1 अंक की संभावना और बनते हुए तन्वी के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर स्कोर बोर्ड पर बहुत तेजी से हलचल देखने को मिली है शुरुआती क्षणों में। क्या 1 अंक यहाँ पर और मिलेगा प्रकृति को? बिल्कुल मिलेगा। लगातार प्रकृति शर्मा यहाँ हावी होते हुए, एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि तन्वी के लिए कोई मौका है। 1 अंक का इजाफा और देखते ही देखते 10 पर इस बार 1 अंक का इजाफा होने की पूरी संभावना यहाँ पर। जी हाँ, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी तन्वी ने और तन्वी के कोच ने भी कि अंकों का सिलसिला शुरू हुआ है। एक के बाद एक 4 अंकों पर पहुंच गए हैं यहाँ पर तन्वी। 1 अंक और यहाँ पर मिलते हुए अब प्रकृति को 11 पर। एस तन्वी ने 1 और अंक हासिल किया है। बहुत बढ़िया यहाँ कमबैक एस तन्वी का। 12 पर पहुंची है और इसी के साथ ऐसा लगता है 1 अंक यहाँ पर दे दिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ राजस्थान की प्रकृति शर्मा की ये विजयी हुंकार सुनी है यहाँ राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल 2 में। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस अंतिम मुकाबले में बॉयज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल का मुकाबला उत्तराखंड और पंजाब के बीच। रैंकिंग पॉइंट्स इनकी जो है 46 है और बैकहैंड क्रॉस द सर्विस शेर सिंह की। और अच्छी रैली, बहुत ही सुंदर स्मैश।
और इस बार बैक लाइन के बाहर और इस बार साइड लाइन के बाहर। तो ये गेम पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ नेगी के लिए, 1 अंक की ज़रूरत। बैकहैंड रिटर्न नेगी का, बैक लाइन से एक बार फिर टॉस किया, हाई टॉस, और ये क्या शानदार इनका, लेकिन बाहर, साइड लाइन के बाहर। और इस बार साइड लाइन के बाहर, और इसी के साथ पहला जो गेम पॉइंट, पहला गेम जो है अंश नेगी ने जीत लिया है और लगातार अपने फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। To see the prowess, class and audacity of these settlers. This time backhand return by Ansnegi and Jagsir Singh Kangra. जगशेर सिंह तो थोड़े से दबाव यहाँ पर दिखते हुए, और आपको इस मुकाबले में बने रहना है तो दबाव को रिलीज करने की जरूरत होगी। नेगी की शॉर्ट सर्विस, और इस बार अच्छा पूर्वानुमान जगशेर सिंह का, बिल्कुल इसे छोड़ा बैक लाइन के बाहर, और सर्विस इस समय जगशेर सिंह के पास होगी, शॉर्ट सर्विस। बैकहैंड और राइट हैंड का अच्छा मिश्रण, क्रॉस द कोर्ट गए थे, बिल्कुल हाई टॉस किया, अच्छी रैली चलती हुई यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर किया यहाँ पे। और इस बार क्या शानदार उनका प्लेस जगशेर सिंह का, उन्होंने उनके फुटवर्क को पहले ही भाप लिया था और बिल्कुल अपने दाईं ओर, बिल्कुल डाउन द लाइन जो है वो गया। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से इस रैली को फिनिश किया। और जब भी रैली होती है तो निश्चित ही जगशेर सिंह जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। इस बीच यहाँ पर दूसरा सेट चलता हुआ, 5 अंकों की अभी भी भरत नेगी के पास, और बहुत ही शानदार उनका ये टर्न। Jagsir showing his class and he's a bit of under pressure, but only way to release pressure is to perform well on the court. Ansnegi is still having a healthy lead of 4 points. Ansnegi played in his honors. So point after point for Jagsir Singh Kangra. Pressure is being released, but it's too late. And now, outside the back line, congratulating his opponent. And this is real sports spirit. Ansnegi winning this set and winning this match, and he has qualified for the semi-finals. Look at the scorecard. In first set, a score was 21-12 and 21-11. In 2 consecutive sets, Ansnegi winning Jagsir Singh Kangra in this important match. And Uttarakhand has qualified for the और ये आज का ये बहुत बड़ा मुकाबला। मेन अब बात करें बॉयज हॉकी का, हरियाणा वर्सेस पंजाब, और उससे पहले बॉल कंट्रोल नजर आया पंजाब का। पिछला अटेम्प्ट उतना बेहतर नहीं था जिस तरीके से पंजाब के खिलाड़ी क्या क्वीक इस समय, कशप्रीत सिंह जो मौजूद है इस समय, और इसी के साथ गोल किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे गोल पोस्ट के अंदर दाखिल किया बॉल को। और यहाँ हरियाणा के पास इस समय जर्सी नंबर 12 गोल के लिए इस समय जा रहे इंजेक्शन के लिए, पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए सुनील। देखना होगा इस समय गोलकीपर पे, जैसे जसप्रीत पे बहुत बड़ी निगाहें रहेगी इस वक्त। बहुत ही अहम मुकाबला इस बीच इस समय इंजेक्ट किया, स्टॉप ड्रैग, बहुत शानदार ट्रैक यहाँ पे हरियाणा ने बराबरी का गोल कर लिया, इक्वलाइजर का। One of those rattling feathers behind a goal post, the 1-1, but penalty corner here for Punjab. The insertion has been made and the goal has also been made. Within a minute, 2 goals for Haryana. 2-1 की लीड हरियाणा के नाम। और दोनों टीमों की बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है अभी भारत हॉकी में, जिस तरीके से दोनों ही ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पुरुष हॉकी में जीते हैं।
और यहाँ पे बहुत शानदार प्रयास अगेन, यहाँ पे एक और गोल हरियाणा ने। हरियाणा के पास अपने लीड को और बड़ा करने की 4-1 की बढ़त के साथ हरियाणा सेकेंड क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए इंजेक्ट किया। स्टॉप ड्रैग अगेन, बहुत शानदार, कोई मौका नहीं। एक और गोल, यहाँ पे 3 गोल देखने को मिले और 5-1 की बड़ी लीड में इस समय हरियाणा की टीम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। देखना होगा इस समय हर्षदीप सिंह बॉल के साथ, जर्सी नंबर 11 इस वक्त अजय पाल सिंह। अजय ने साथी खिलाड़ी अजय को दिया। इस वक्त हर्षदीप से एक बहुत दूर से स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक, बहुत शानदार। पंजाब के जाबाज सितारों ने वापसी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। काफी अच्छी अगर बात करें हॉकी दिखाई है दोनों टीमों ने। पंजाब भी अच्छी चुनौती पेश कर रहे हैं। मिडफील्ड में एक बार फिर से बॉल कंट्रोल। रोशन भूषण इस टीम के बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। रोशन भूषण काफी क्वालिटी प्लेयर है मयूर, और मिडफील्ड में और फॉरवर्ड लाइन में जहां जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑल हॉकी का जमाना है, अपने आप को उस तरीके से देखिए स्कूप किया बॉल को, फ्लैंक को स्विच करने का प्रयास। दूसरी नंबर 11 अजय पाल मौजूद थे। अजय पाल से साथी खिलाड़ी वहां पे क्लियर गुरदयाल सिंह जो कि हरियाणा के लिए। यहाँ पे हरियाणा के गोल पोस्ट पे खतरा मंडरा रहा। इस बीच चौथा क्वार्टर गोल रहित रहा और फाइनल स्कोर 5-3 से हरियाणा फाइनल में। ये मैच शुरू होने जा रहा है महाराष्ट्र बनाम केरल। Her presence in the paint is going to be important. Maharashtra will look at the weight that comes from good move to the basket, finishing, registering a 2, getting onto a scoreboard. Watch that again. She drives in and gets that release. Kerala on their part are giving too many easy rebounds, allowing Maharashtra to have multiple opportunities. There's a good fight there for the ball. Here comes Kerala on the transition. Can they score? Forces that attempt. Substituted into the game. That was Claudia Onden. Good defense there by her. As there is a release. The pressure comes off a little bit as the shooting begins to work. Divisha Sharma converts. Kerala with a pull-up jumper. Once again, just not getting the roll from the ring. Claudia needs to follow up her attempt and try and go for the rebound, especially with the height that she has. केरल एक कन्वर्ट करते हुए देखिए खिलाड़ी वहाँ पे टर्न किया है। एक 3 पॉइंट खेल बनाने की कोशिश है। दे नीड टू होल्ड बैक। अगर महाराष्ट्र थोड़ा सा स्लो भी कर देता है खेल को तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा पास वहाँ पे। सिर्फ 13 अंक का फासला अब भी है, 20 सेकेंड बाकी। आर्या बहुत बढ़िया फिनिश। 3 पॉइंटर मिस करेंगी। ऑफेंसिव रिबाउंड के लिए बिल्कुल खड़ी थी वहां पर हर्षला विजय पाटिल। 10 सेकेंड के आसपास का समय बाकी और मैच के परिणाम पर अब कोई असर पड़ने वाला है नहीं। चलिए एक और 2 पॉइंटर के करीब है। रिंग से रोल होती हुई गेंद गई। एक और ऑफेंसिव रिबाउंड छोड़ना नहीं चाहती हैं। चलिए 2 पॉइंटर जाते जाते मिस हो गया। समय समाप्ति की घोषणा यहां पर होती हुई और उम्दा प्रदर्शन करके महाराष्ट्र ने इस मैच में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। बास्केटबॉल में अब लड़कियों के वर्ग में तमिलनाडु बनाम हरियाणा के बीच मैच संपन्न होगा। Yes, the jump ball which the game begins with in the middle of the court, watching that. This is for those of you who are watching a basketball match for the first time. But I'm sure a lot of you have watched it as play gets underway. बेहतरीन दीवारें नजर आ रही है टीम हरियाणा की। काफी तेज गति के साथ यहाँ पर बॉल दिया था काफी ने, जो कि कुरुक्षेत्र से है, और अब आक्रमण करेगी टीम तमिलनाडु।
and that through their number 1, is it? Tamil Nadu, it was, correction. Tamil Nadu on the far side, and that was their number 5, Yuvashri. They are the team in yellow, the team in blue now going on. डायरेक्शन जो चेंज किया लेकिन बहुत जल्दी वहां पर एंटिसिपेट किया और ये देखिए ये होता है पास। कितनी बेहतरीन अंदाज के साथ बैक बिहाइंड द पास दिया था तन्नू ने। कोशिश डिफेंस को तोड़कर रख दिया है टीम हरियाणा ने। बहुत अच्छा रोटेशन, डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है और ये 14 नंबर लावण्या जो कि बहुत बढ़िया पिवट प्लेयर है, अपने टीम के लिए बेहतरीन खेलती है और जब जब लावण्या पिवट करेगी, अंदर आएगी, शानदार पॉइंट करेगी। शानदार बेहतरीन खेल लावण्या द्वारा हरियाणा। नेट के नीचे बहुत ही अच्छा पास है लेकिन इसे तुरंत शॉट में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं? जी हाँ, राजलक्ष्मी का ये शॉट अब दोनों टीमों के बीच। अब लगता है कि हरियाणा बचे हुए समय में यहां पर जेफरीन के हाथ से गेंद टकराकर साइडलाइन के बाहर गई है। पोजीशन रहेगा हरियाणा के पास और तमिलनाडु के लिए समय निकलता जा रहा है। हरियाणा के लिए अच्छी बात की पोजीशन अभी भी उनके पास है, थोड़ा सा वो रोटेट भी कर सकती है। फाउल किया है फिर से, जी नहीं, बैक कोर्ट हुआ है, आगे से कोर्ट के पीछे आया है। टाइम आउट चेन्नई के पास। तो ये एक स्ट्रेटेजी कोचेस यूज करते हैं फाउल की पोजीशन हासिल करने के लिए। हेमावर्णी को घेरे हुए हैं, मौका बनाया था, डिस्पॉसेस हुई है और अब हरियाणा शायद इस मैच को निकाल ले जाएगी। अब कोई मौका नहीं बनेगा। जी हां, बहुत बढ़िया। अभी आपको सिर्फ पोजीशन रखना है, शूट की चिंता मत करिए। समय समाप्त, जीत गई है हरियाणा। एक बहुत ही करीबी मुकाबले में दिल जीता है तमिलनाडु ने, जिस ढंग से वापसी की तमिलनाडु की टीम ने। 77-80। अगर आप जीतने वाली टीम के तरफ से देखें तो 80-77 के क्लोज मार्जिन से जीती है हरियाणा की टीम। पूरा दम दिखाया था तमिलनाडु ने। अंतिम मुकाबला जो कि खेला जाएगा बिहार और असम के मध्य, फाइनल मुकाबला स्वर्ण और रजत पदक के लिए मुकाबला होगा। माथे पर पट्टा बांधे हुए खिलाड़ी, ये देखिए 7 नंबर अभिजीत, बहुत ही खतरनाक है। देखिए शुरुआत हो चुकी है और आसाम को तो हम आज पहली बार देख रहे हैं, चूंकि सिर्फ इसी इवेंट में आसाम की टीम आई थी और आते साथ ही सबका दिल जीत लिया। और यहाँ पर बिहार को अंक मिलेगा। 14वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ 7 पदक है कुल। और वहीं बिहार 15वें स्थान पर है। ये तो देखने वाली बात होगी। अब तक तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, दोनों टीमें एक भी मैच हारी नहीं है इस इवेंट में आज सुबह से। सिद्धांत सर्विस करते हुए, नहीं, हर्षित जंप लेके ब्लॉक करना चाह रहे थे मगर यहां पर अभिजीत ने साइड में बॉल डाल दी और अंक प्राप्त कर लिया। हर्षित कुमार पहले सेट से पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिए गए थे, जैसा कि पूरी उम्मीद लग रही थी, क्योंकि पारसारथी उस तरह का खेल नहीं दिखा पा रहे थे। काफी तेज शुरुआत हुई है और असम को मिलने वाले अंक के साथ दूसरे सेट की शुरुआत हुई है। अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करना और अपने खेल कौशल में क्षमताओं को प्रदर्शित करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये देखिए क्या ब्लॉक किया है। अरे गिरते पड़ते भी अच्छे खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए। अरे वाह क्या बात, अच्छी रैली, बहुत बढ़िया ब्लॉक, क्या बात है। हर्षित कमाल कर गया और लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए बहुत ही बढ़िया खेल को। और ये देखिए पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया। प्रयास अच्छे, 11-9 का स्कोर, वापसी कर रहा है बिहार। अंक में परिवर्तित करेंगे, सर्विस अगर बढ़िया हुई तो सब कुछ बढ़िया। नहीं, उन्होंने भी वही गलती करी जो अभिजीत ने की थी। अपनी स्वर्णिम सफलताएं दिलाएगा
असम। सांस रोक देने वाला ये मुकाबला है। बिल्कुल 14-14 पर बराबर। सारथी ने इशारा किया है जश्न मनाते हुए। नाजुक घड़ी है इस मुकाबले की। यहां पर क्या बिहार के खिलाड़ी वापसी कर पाएंगे? अच्छी रैली चलती हुई। अभिजीत ने हक लिया है। 15-8, 17-15 से ये मुकाबला अपने नाम किया है असम की टीम ने। खेलो